morning class. In this video we are going to talk about how a partnership firm can record their transaction in their books, in their final account. So as we have already discussed in 11th that so many transactions we can record and as a sole proprietorship we can record our all transaction at the end of the year in trading P&L balance sheet, isn't it? So a partnership firm also just does record their transaction same as sole proprietorship. The partnership firm also just prepare a trading account for record their transaction about manufacturing, and the partnership firm also prepares a P&L account for record their transaction which is related to operating and non-operating activities. And then after to finalize and to get the financial position of a business, partnership firm also just record their transactions in balance sheet also. So here we are just talking about today how a partnership firm can record their transactions. So as sole proprietorship, a partnership firm also records their transaction as this I have already told you in trading account, P&L account and balance sheet, right? So as we already know that we have already discussed in 11th that trading and P&L account, all the transactions we can record like this by sales and by to opening stock to purchases. Then after we just got gross profit from the trading account. That gross profit we will transfer in P&L account, right? After the transferring of gross profit in P&L account, we just record all operating and non-operating incomes in credit side, and we contain all operating expenses and non-operating expenses in debit side. After that, adding operating income and non-operating income in gross profit, the total of credit side after deducting operating expense and non-operating expense, we can find the net profit as balance, right? So that net profit, if partnership firm has partners, right? So that net profit will be divided into partners. Partner, for example, if we assume partner A and B is there, तो ये जो प्रॉफिट ए कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. लेकिन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हम लोग यहाँ इसको नहीं कर सकते. पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए we just have to prepare another account. That account we can call P&L appropriation account, right? What is the difference between P&L account and P&L appropriation account? Here also we just record on expenses and incomes, and P&L account we just have also record all expenses and incomes. So what is the difference between a P&L and P&L appropriation? So the major difference between P&L and P&L appropriation we can just by the name. Here the appropriation is have written. What does it mean by appropriation? Appropriation means distribution. Distribution of what? Distribution of profit. So if just a partnership firm just getting net profit after deducting all the expenses, necessary expenses, and that net profit we can transfer here by P&L account as per P&L. Okay, so after this recording that P&L in credit side, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद में और जो एक्सपेंसेस हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं वो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. तो सब चीज़ें वही हैं जैसे हम लोग करते आ रहे हैं. ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, इसमें एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना. तो बस यहाँ पे एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप वी डिडंट डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट, बट इन पार्टनरशिप वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रोल हो गया. तो ये जो प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप में 1% लेता था, अब यहीं पे वो नंबर ऑफ पर्सन्स लेंगे, नंबर ऑफ पार्टनर्स लेंगे. तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? तो अभी मैंने बताया कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दो अकाउंट पोस्ट में आते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है. प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए
क्या कैलकुलेट हो, प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को किस तरह से जज करना होता है। जो भी P&L अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट लेते हैं, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करते हैं। क्यों करते हैं ट्रांसफर, इसके पीछे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे, दो टाइप के आइटम्स होते हैं। ऐसे एक्सपेंस जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और एक्सपेंस जो कि एप्रोप्रिएशन होते हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पे चार्ज और एप्रोप्रिएशन में। एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट पे बर्डन होते हैं, आइदर यू हैव प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट और नॉट, आपको एक्सपेंसेस पे करने होंगे, आपके पास चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ सैलरी, जो आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट, राइट, फैक्ट्री का रेंट, ये सब इंफॉर्मेशन, मैनेजर्स को कमीशन, ये सब नेसेसरी आपको एक्सपेंसेस चार्ज करने होंगे। आइदर यू कैन सफिशिएंट प्रॉफिट और नॉट, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं, ये एक्सपेंसेस आपको कंपल्सरीली पेमेंट करने होंगे, करेक्ट। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम लोग P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ये किसी पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, इसके बाद जो बचेगा पार्टनर में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बिजनेस फर्म, राइट, एंड इन बिजनेस फर्म आई जस्ट अर्न इनकम ₹1 lakh। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, I have earned rupees income 1 lakh. After the deducting all necessary expenses, just like rent, interest on loan, staff salary, all the necessary expenses, we can take an example like 10,000, again 10,000 and 20,000. The total expense will be 40. After deducting 40,000 out of 1 lakh, we have just got a 60,000 profit. That profit will be distributed in the partners. ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये नेसेसरी एक्सपेंसेस को पेमेंट करना जरूरी है। आपके पास से प्रॉफिट सफिशिएंट हो या नहीं हो, मैटर नहीं करता। प्रॉफिट आपने अर्न किया 50,000, रेंट है आपका 5 लाख, 5 लाख तो रेंट पे करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना बिजनेस बंद कर देंगे रेंट नहीं पे करने की वजह से। आप जब इमेजिन करें कि आपने बिजनेस को रन करने के लिए लोन लिया है, राइट, उस लोन को पे करना, आपको लोन पे इंटरेस्ट आपको देना होगा, वो इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट पे बर्डन है। आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या नहीं हो, वो इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट पे बर्डन होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस किसी पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, वो सारे एक्सपेंसेस किसी पार्टनर को नहीं देने हैं, वो कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि हमको पे करना होता है। उसके बाद इफ यू जस्ट गेटिंग सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, यू कैन से आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इफ यू गेट जस्ट एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सो दैट प्रॉफिट वी कैन डिवाइड इन पार्टनर्स। सो उस प्रॉफिट को डिवाइड करने से पहले जितने एक्सपेंसेस आपने कंपल्सरीली माइनस कर दिए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं चार्ज। और जो एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपल्सरी। एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस चार्ज हैं, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो मैनेजर कमीशन हो, अदरवाइज किसी टाइप का कोई रेंट हो, स्टाफ सैलरी हो, आपने प्रॉफिट अर्न किया या नहीं, आपके बिजनेस में इनकम है या नहीं, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं तो स्टाफ विल नॉट वर्क फॉर यू एंड स्टाफ विल जस्ट लेफ्ट ऑफ योर बिजनेस, राइट। तो उनको बिजनेस को सर्वाइवल के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस आपको करने होते हैं अदर देन पार्टनर्स रिलेटेड, वो सारे एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं, वो प्रॉफिट पे बर्डन होते हैं। और जो एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं वो सब कहाँ इंक्लूड करते हैं, P&L अकाउंट, राइट। Appropriation, what does it mean by appropriation? Appropriation depends on your profit. Expenses which is depends on your profit. If you have sufficient profit, so you can pay expense. If you have not sufficient profit, so you can pay expense up to the extent of your profit. जितना आपके पास प्रॉफिट है उतना ही आप एक्सपेंस पे कर सकते हैं, उनको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो डिपेंड करते हैं आपके प्रॉफिट पे। प्रॉफिट हुआ तो पेमेंट करेंगे और नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। प्रॉफिट फॉर एग्जांपल एक्सपेंस आपके पास में 50,000 है, प्रॉफिट 20,000 है, तो एक्सपेंस भी 20,000 का पे होगा, लेकिन होगा। ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं एप्रोप्रिएशन। अब डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, हाउ वी विल डील विद चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस, उनको कहाँ शो करते हैं, कैसे हम लोग दिखाते हैं, वो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपेंसेस जो कि चार्ज होते हैं और एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन होते हैं। चार्ज मैंने बताया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट,
आपके पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, एक्सपेंस पे करना होगा। हो सकता है इस वजह से आपका बिजनेस लॉस में चला जाए, हो सकता है आपका एक्सेस लॉस हो जाए। आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 का लॉस है और बैंक को इंटरेस्ट देना है 20,000 का, आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा और इस वजह से आपका लॉस आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू बैंक इट विल गोज 30,000। तो ये क्या है, ये चार्ज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट हुआ तो पे करेंगे, नहीं तो नहीं पे करेंगे, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं एप्रोप्रिएशन। तो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने, और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल में। देखिए, जो चार्ज एक्सपेंसेस हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड है वो है इंटरेस्ट on partners loan. As we have already discussed, in the absence of partnership deed, if partner is providing kind of amount as a loan to the firm, he is entitled to get interest at the rate 6% per annum, right? So if just partner giving a loan to the firm, so that kind of loan is stated as charge. That interest on that loan is stated as charge. तो वो आपको कंपलसरी पे करना होगा, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या नहीं हो, वो आपको कंपलसरी पे करना होता है। तो जो एक्सपेंसेस आपके चार्ज होते हैं वो कौन कौन से आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, समटाइम्स वी विल ट्रेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। अगर कंडीशन होगी तो उसको भी हम लोग एज चार्ज ट्रीट करेंगे। उस टाइम पे पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी पे करना होगा, डजंट डिपेंड ऑन प्रॉफिट। सो तो उसको हम लोग यहाँ पे एज अ चार्ज हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं, जितने भी आइटम चार्ज होते हैं, वो सब हम लोग कहाँ इंक्लूड करने वाले हैं? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इट विल इंक्लूड इन P&L अकाउंट। ये सब कहाँ जाने वाले हैं? P&L अकाउंट। एक्सपेंसेस जो कि डिपेंड होते हैं आपके प्रॉफिट पे, प्रॉफिट हुआ तो पेमेंट होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो पेमेंट भी नहीं होगा। ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे आइटम्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स commission, and reserves, partners bonus, ये सभी क्या है? ये सब एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट पे क्या होते हैं? बर्डन नहीं होते। आपके पास प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट दो, प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने डील में डिसाइड किया था कि इंटरेस्ट और कैपिटल जो है वो डिपेंड किस पे होता है? प्रॉफिट पे होता है। अगर प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है पार्टनर्स पे, वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है, राइट? अभी चलाना जरूरी है इसको। ये सभी क्या है? ये सभी एक्सपेंस है, ठीक है, जो कि एज एप्रोप्रिएशन है। यहाँ पे कुछ इनकम्स भी होती है जो कि आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, करेक्ट? तो ये सारे जो आइटम्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं? ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। क्योंकि डिफरेंस क्या है चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में? ये एक्सपेंसेस कंपलसरी आपको पे करने होंगे, प्रॉफिट आपका सफिशिएंट हो या नहीं हो, एक्सपेंसेस डेफिनेटली आपको पे करने होंगे। लेकिन ये एक्सपेंसेस सारे डिपेंड करते हैं आपके प्रॉफिट पे। प्रॉफिट होगा तो हम लोग एक्सपेंस पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग एक्सपेंस पे नहीं करेंगे। अब इनको हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं? तो ये सारे रिकॉर्ड होते हैं P&L अकाउंट में और ये सारे रिकॉर्ड होते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं शॉर्ट समरी में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जितने भी चार्जेस हैं अगर इनको हमें रिकॉर्ड करना है P&L अकाउंट में तो हम लोग इसको इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। P&L अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर,
ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, क्वेश्चन आपको अर्न करके कैलकुलेट करके देता है ड्यूरिंग द ईयर आपकी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो जो नेट प्रॉफिट पेंडल से निकलता है वो कितना है एग्जैक्टली। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है तो हम लोग सब इनको नेट डेबिट दिखाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और टू रेंट और टू मैनेजर्स कमीशन और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, उसके बाद में जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, यहाँ पे इनमें से कुछ भी हो सकता है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है विल ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इनमें से कुछ भी आपके सामने हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, इस सब पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो प्रॉफिट है पेंडल एप्रोप्रिएशन में जाता है, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन कैसे ट्रीट होता है तो देखिए कौन कौन से आइटम्स यहाँ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पेंडल एप्रोप्रिएशन में। ये एक शॉर्ट यहाँ पे फॉर्मेट है पेंडल एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो पी&एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया था, वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्रॉस कैसे हो जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे उसे एज पर पी&एल अकाउंट। अगर लॉस होता है वहाँ तो यहाँ पे लॉस ट्रांसफर हो जाता है तो नेट लॉस एज पर पी&एल। तो जो भी पी&एल अकाउंट में जितने भी चार्ज एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस आपके आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग को यहाँ उसको लेके आना होता है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में जितने भी एक्सपेंसेस जो कि एप्रोप्रिएशन होते हैं डिपेंड करते हैं आपके प्रॉफिट पे। आपको तो एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट आप इनको पेमेंट करते हैं, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसे एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन। तो कुछ एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन है जिन्हें आपको कंपल्सरी पेंडल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करना होता है, वो कौन कौन सा होता है? वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वहां भी शामिल है और यहाँ भी हम लोग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग चार्ज ट्रीट करें या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें। तो क्वेश्चन अगर इन्फॉर्मेशन आपको गिवन करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज हम लोग ट्रीट करेंगे तो ये पी&एल अकाउंट में जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसके लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन की तरह उसको ट्रीट करेंगे और वो यहाँ आएगा। अगर पार्टनर फॉर एग्जांपल ए एंड बी है तो उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिखाना होगा, फाइनल अमाउंट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आता है पार्टनर्स सैलरी, यहाँ आता है पार्टनर्स कमीशन। अगर फर्म रिजर्व बना रही है तो यहाँ आता है जनरल रिजर्व। ये तो थे एक्सपेंसेस जो कि एप्रोप्रिएशन होते हैं, क्योंकि डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्रेडिट साइड पे हम लोग इंक्लूड करते हैं इनकम। तो इनकम के नाम पे यहाँ पे आपको गिवन होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर अगर ए एंड बी है तो उनकी कैलकुलेशन आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा और ये वैल्यू नहीं है। आफ्टर दैट इसका टोटल होगा। टोटल होने के बाद में अगर इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और ये प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, करेक्ट। और अगर एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हैं और इनकम कम है तो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, और जो भी लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, करेक्ट।
तो ये क्या है, ये लेजर है, डायरेक्ट हम लोगों ने लेजर बनाया कि एक्सपेंसेस को हम लोग किस तरह से अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इनकी एंट्रीज कैसे बनती है, आपसे पूछे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने की एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करने की एंट्री, तो इस पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंट्री, जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको हम लोग जर्नलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, जर्नलाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, तो समरी आपके यहाँ पे गिवन है। एप्रोप्रिएशन में जो मेन ट्रांजेक्शन आते हैं वो होता है इंटरेस्ट इन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को मेन दिखाना होता है इंटरेस्ट ऑन रेंट। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब इसकी एंट्री हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए फर्स्ट हम लोग एंट्री पर डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करें पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो इसको डेबिट होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा, जो भी पार्टनर्स ने अपनी इंटरेस्ट कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उससे उनकी कैपिटल में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और टी शेप अकाउंटिंग हमने पढ़ा है, अगर कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, या तो आप इस तरह से ट्रीट करें और पार्टनर्स कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट को क्रेडिट करना इसलिए जरूरी होता है, तो हम लोग ऑन द अदर साइड हम लोग देख सकते हैं कि पार्टनर्स के लिए क्या इनकम है, और इनकम है तो इनकम क्रेडिट पे जाती है, सभी इनकम नॉमिनल अकाउंट है, तो इसलिए ये सारी इनकम कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को हम यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं। एप्रोप्रिएशन का टाइप क्या होता है, एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे तो। ठीक है, सेकंड हम लोग एंट्री यहाँ पे पास करेंगे फॉर transferring interest on capital in P&L appropriation account। ऐसा क्यों करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने बिजनेस ने एक्सपेंस कर दिया। अब एक्सपेंस कर दिया तो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस अपने सारे एक्सपेंसेस को एक अकाउंट में रिकॉर्ड करता है और उस अकाउंट से फाइनल प्रॉफिट लॉस निकलता है। तो वो जो प्रॉफिट लॉस जिसपे एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट लॉस निकालती है, वो अकाउंट कौन सा होता है, वो होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम जो एप्रोप्रिएशन है उनको P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करने के लिए आपको उनको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर करना होता है। तो ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस को रिवर्स करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट है। ठीक है, जब ये रिवर्स होगा, ठीक है, या आप इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब इनके अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, टू साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट किसको करेंगे, किसके डेबिट में जाएगा, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, हम लोग एंट्री पास करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो सैलरी है वो कहाँ हम लोग ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट कौन सी साइड पे आता है, डेबिट साइड पे, टू सैलरी। अब इसके लिए हम लोगों ने एंट्री क्या पास की, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इसमें हमने एंट्री क्या पास की, P&L अकाउंट टू सैलरी, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो यहाँ पे जब आप सैलरी एक्जैक्टली पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस तो ये होगी ओपनिंग एंट्री जहाँ पे आपने एक्सपेंस को पे किया, और एक्जैक्टली बिजनेस के प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं, इनकम्स होती है, इनको एक अकाउंट में हम लोगों को रिकॉर्ड करना होता है, वो हो गया P&L अकाउंट। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस है उनका बैलेंस रिवर्स हो जाता है, वो अकाउंट बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सैलरी कहाँ है, डेबिट में, जैसे आपने इसको फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर किया, कहाँ चला गया, क्रेडिट में, करेक्ट। तो इस तरह से ये ट्रांसफर की एंट्री होती है और ये पेमेंट की एंट्री होती है।
तो ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों ने कहाँ ट्रांसफर किया? एप्रोप्रिएशन में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन कैपिटल, तो जो इंटरेस्ट इन कैपिटल एज एक्सपेंस डेबिट था वो हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट शो कर दिया, ठीक है। और डेबिट किसको किया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। इसी तरह से और भी एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड, सैलरी पेड, ठीक है। तो सैलरी पेड करने के लिए क्या एंट्री हम लोग बनाते हैं? सैलरी क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो सैलरी हुआ, या कमीशन हम लोग कह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एंट्री के पास करनी चाहिए, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो एंट्री यहाँ पे बननी चाहिए पार्टनर्स सैलरी, अदरवाइज कमीशन अगर है तो हम लोग इसको कमीशन यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इससे क्या होगा? सैलरी बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन ये सैलरी किसको हम लोग पे कर रहे हैं? सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग पार्टनर्स को। So that is the reason behind it, that salary which we will just debiting in by calculation of profit and loss of partnership account, we are just containing here debit side, right? So इसी तरह से जब हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का पर्सनल इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये पार्टनर्स के लिए क्या होगा? इनकम होगा, तो कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट साइड में। इसीलिए हम लोग यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट यहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट क्यों हुआ? आप कह सकते हैं पार्टनर के लिए इनकम है इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट किया। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि आप पार्टनर से इसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, जितना अमाउंट पार्टनर ने लगाया एज अ बिजनेस एज अ कैपिटल, वो सैलरी और मिलने से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। और सेम एज अदर एक्सपेंस, इसको भी हम लोगों को रिटर्न ऑफ करना होगा। तो फॉर ट्रांसफरिंग, अदरवाइज वी कैन से फॉर closing of salary और कमीशन अकाउंट। तो सैलरी और कमीशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना होगा? ये एक्सपेंसेस आपके कहाँ है? डेबिट साइड, तो उसको आप क्रेडिट में दिखा दो, ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। डेबिट में हम लोग क्या दिखाएंगे? जिस अकाउंट में हम लोग इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसी तरह से और भी आइटम्स है जिनके हम लोग एंट्रीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट इन कैपिटल की एंट्री बनाई, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन की हम लोग एंट्री बनाई, रिजर्व की हम लोग एंट्री डायरेक्ट बना सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, यहाँ पे रिजर्व की एंट्री बना सकते हैं। एक मोस्ट एंट्री इंपॉर्टेंट जो आपको ये देखने वाली है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो फिफ्थ एंट्री पे हम लोग बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करती है? चार्ज करती है। पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं, और वो जो अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करते हैं फर्म उन पे क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। तो अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो फर्म के लिए क्या है? इनकम। और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे क्रेडिट चला गया। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल में चेंजेस आएगा। पार्टनर कैपिटल कहाँ चली जाएगी? डेबिट में। पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री हमने पास की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस ने चार्ज की है। अब क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो बिजनेस के लिए इनकम है, तो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट और लॉस
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। और बिजनेस के लिए इनकम है तो इसे पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट में हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग P&L से ट्रांसफर करके लाएंगे उसमें इनकम को प्लस करना होगा, और एक्सपेंसेस अगर हैं तो उनको माइनस करके नेट हम लोग प्रॉफिट और लॉस पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पार्टनर्स के लिए जितनी भी इनकम है उसको भी पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाना जरूरी है। तो जो आपने इंटरेस्ट की इनकम अर्न की है फर्म ने, उसको P&L एप्रोप्रिएशन में हम लोग कैसे इंक्लूड करेंगे? बाय पासिंग दिस एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या थी? इनकम। जैसे ही आप इसको रिकॉर्ड करेंगे हमको रिजर्व ऊपर करना, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो फॉर क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इनकम अकाउंट आपने खोला उसको क्लोज करने के लिए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? ये किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो क्लोज करने के लिए हम लोग कहाँ दिखाएंगे? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री हम लोगों ने पास की। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेजर पोस्टिंग करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि अगर यहाँ पे हमने बात किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। तो पार्टनर अगर एक से ज्यादा हो, A एंड B, पार्टनर अगर ज्यादा है तो हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे? ये एंट्री कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। पार्टनर अगर है तो वी कैन राइट टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल हियर इंस्टेड ऑफ पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल की जगह हम लोग क्या दिखाएंगे? उनके नेम्स को हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज जिसमें हम लोग को डिस्कस करना होता है। आफ्टर द जस्ट पासिंग दैट एंट्रीज इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, we can find out final profit and loss from P&L appropriation account. For the final profit and loss, the entry we can pass from here P&L appropriation account debit to partners capital for the profit, right? Because A and B partners are debiting here, correct? So for the passing the entry from ledger, that partner who is debit side, it will include in credit side of entry. So for profit on P&L appropriation, ठीक है, एंट्री वी विल पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to partners capital account। ठीक है, और इसी तरह से लॉस के लिए हम लोग एंट्री पास करें तो लॉस में मतलब पार्टनर्स के साइड है, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड है, तो एंट्री के लिए हम लोग कहाँ इसको ट्रांसफर करेंगे? डेबिट में। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ, और 7 और नंबर 8 पे हम लोग ये एंट्री पास कर देते हैं फॉर लॉस ऑन P&L appropriation, loss in P&L appropriation account. Entry we will pass that loss will be debited because in ledger it is credited. So क्योंकि लॉस है, अब लॉस है तो सारे लॉस डेबिट होते हैं, तो पार्टनर को लॉस बेयर करना पड़ेगा, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ डेबिट हो जाएगी, क्योंकि इससे उनकी कैपिटल क्या होगी? कम। और कहाँ ट्रांसफर होगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, पार्टनरशिप फर्म के जो ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग इस तरह से रिकॉर्ड कर देते हैं। एट लास्ट में रिपीट कर देता हूँ, 2 तरह के ट्रांजेक्शन पे हम लोगों को फोकस करना होता है यहाँ पे। जो ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं वो सभी P&L अकाउंट में जाते हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट पे या बिजनेस पे एप्रोप्रिएशन होते हैं जो डिपेंड करते हैं आपके प्रॉफिट पे। प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंसेस पे करेंगे, प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंसेस पे नहीं करेंगे, या सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंसेस भी सफिशिएंट ही पेमेंट होगा। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस जो अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट हम लोग पे करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं एप्रोप्रिएशन। तो जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी आइटम जो एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन का नाम पड़ा है। और जितने भी एक्सपेंसेस जो कंपलसरी आपको पेमेंट करने होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वो सभी हम लोगों को P&L अकाउंट में शो करना पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको कई बार P&L अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में जो भी हम लोग प्रॉफिट को सबसे स्टार्टिंग में दिखाएंगे एज अ बेस, वो हम लोग कहाँ से दिखाएंगे, तो वो P&L अकाउंट से हम लोग कैलकुलेट करके शो करेंगे।